Hello students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic tools of recombinant DNA technology. पिछले लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय वर एंड कोहेन के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देयर आर मेनली 4 essential tools involved in rDNA technology. First, enzyme. Second, vector DNA. Second, vector DNA or vehicle DNA, not chimeric DNA. Vector DNA or vehicle DNA, also called DNA taxi or gene taxi. Third, passenger RNA, and fourth, suitable host cells. Okay. So first tools is enzyme. First is enzyme. आज हम लोग पहले enzyme के बारे में जानेंगे. There are different types of specific enzymes involved in rDNA technology. Different specific enzymes. Okay, such as first lysis enzyme, second cleaving enzyme, third ligation enzyme, fourth synthesizing enzyme. Okay, so many different types of enzymes are used in rDNA technology. First का नाम बताया मैं. First is digestive or lysis enzyme. Second is cleaving enzyme. Third is ligating enzyme. Fourth is synthesizing enzyme. Okay, so first enzyme में पहला हम लोग देखें lysing enzyme. enzyme का first part lysing enzyme. Lysing means participates in lysis. Lysis means breaking. It means this enzyme is used in lysis of cell to get DNA. सेल से डीएनए को निकालने के लिए लाइसिस एंजाइम का यूज किया जाता है. अलग अलग सेल से डीएनए को निकालने के लिए अलग अलग एंजाइम का यूज होगा. And that enzyme depends upon chemical composition of covering of cell, outermost layer of cell. As for example, in bacteria, lysozyme enzyme is used. Means lysozyme for bacterial cell. Okay. For fungal cell, you know fungal cell is covered by cell wall, consist of chitin. So lysing enzyme for fungal cell is used chitinase. Okay, for plant cell, outermost covering of plant cell is cell wall, consist of सेलुलोज. सेलुलोज के डाइजेशन के लिए सेलुलेज एंजाइम. ठीक है. और अगर बात करें फॉर एनिमल सेल, outermost covering of animal cell is plasma membrane, consist of lipid and protein. So enzyme used for animal cell, protease
लाइपेज, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, लाइपेज लिपिड को ब्रेक करेगा। ओके, दिस इज फर्स्ट एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम। सेकेंड इज सेकेंड नंबर ऑफ एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। Cleaving enzyme is used in cutting of DNA or in fragmentation of DNA. It is of different types, and cleaving enzyme is a major group of enzyme that is called nuclease. Nuclease is of two types, exonuclease and endonuclease. Okay, so cleaving enzyme is also two types. Cleaving का first type exonuclease and endonuclease. These enzymes are responsible for the fragmentation of DNA strand, for cutting of DNA strand into a small pieces. Okay, नाम से पता चल रहा है एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। अगर ये कोई डीएनए मोलिक्यूल्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोलिक्यूल सपोज दैट, अगर इस डीएनए मोलिक्यूल को किसी एंड से अगर काट रहा है, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, एंड पर से काटेगा, डेट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज। और अगर एंड के अलावे किसी भी पार्ट से कट कर रहा है डीएनए मोलिक्यूल्स को, उसका नाम देंगे हम, एंड से काटेगा एक्सोन्यूक्लियेज, जिसके बीच में कहीं से काटेगा, डेट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियेज। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियेज cuts DNA at terminal ends. Terminal ends means 5' end or 3' end. Suppose that this is DNA. अगर एक स्ट्रैंड की बात करें 5', 3', 3', 5', तो यहां से काटे, यहां से काटे, यहां से काटे। Okay, this is exonuclease, and exonuclease is not useful इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका यूज नहीं होता है। सेकेंड इज एंडोन्यूक्लियेज ब्रेक्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस। इंटरमीडिएट प्लेसेस 3', 5', 5' और 3', सपोज दैट अगर इस रूप में कहीं से काट रहा है, वह क्या कहलाएगा? ब्रेक्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस और एंडोन्यूक्लियेज। And the special types of endonuclease enzyme is restriction endonuclease enzyme. It is a type of endonuclease. Okay, it is a type of endonuclease, and it is very useful and used in rDNA technology. Okay, restriction endonuclease enzyme is also called molecular seizure. Seizure means कैंची, काटने वाला। तो किसको काट रहा है? डीएनए को। डीएनए इज ए molecules, so it is called molecular seizure, also called molecular seizure. It cuts DNA oblique or straight. Cuts DNA oblique or straight. At a specific sequence of bases और न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा नहीं है
कि अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का डीएनए पर एक्शन कराएं तो कहीं से यह डीएनए को ब्रेक कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट ब्रेक्स द डीएनए मोलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक साइट और अ स्पेसिफिक पॉइंट्स at a specific site where a specific sequence of nitrogenous bases or nucleotides are present. Okay, and this a specific site sequence of bases is called restriction site. उस साइट जहां से कट करेगा उसका नाम क्या देंगे? रिस्ट्रिक्शन साइट, ऑल्सो कॉल्ड palindromic sequence of base. It means first of all restriction endonuclease enzyme identify the palindromic sequences of the base and DNA, then that cut the DNA molecule in obliquely form or in a straight form. सिंपल समझ लें, जैसे कि मान लिया जाए कोई डीएनए मोलिक्यूल्स है ए सी सी जी ए सी सी जी टी टी सपोजिट, इसका अपोजिट टी टी जी जी सी सी ए। अब अगर जी और सी के बीच कट करता है, यहां से काटता है, तो इसको कहेंगे स्ट्रेट कटिंग, स्ट्रेट वे में कट किया। लेकिन अगर एक को यहां से काट दिया, किसके किसके बीच? जी और टी के बीच, और यहां काटा जी और टी के बीच, इस कंडीशन में, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड यानी कम स्ट्रेट कंडीशन के लिए हो गया ये, और ये फर्स्ट किसके लिए हो गया? ऑब्लिक कंडीशन के लिए। तो दोनों वे में ऑब्लिकली भी कट कर सकता है, स्ट्रेट भी कट कर सकता है। ओके, अब हम देखें इस साइट का नाम बताया, जहां भी कट करता है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन साइट, ऑल्सो कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या? व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट रीड सिमिलर एट बोथ एंड्स। दोनों तरफ से अगर पढ़ा जाए तो सेम ही आए। जैसे कि बचपन में पहले आप लोग कहते होंगे 2 अक्षर 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। जैसा एग्जाम्पल अगर देखें, मलयालम, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखिए, इधर से भी मलयालम, इस डायरेक्शन से भी मलयालम। ओके, सो मलयालम इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यहां वर्ड का, कुछ लेटर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन हमें जानना है डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका मतलब जो बेस का सीक्वेंस है वह दोनों डायरेक्शन से, अगर यहां हम 3 कर दें, यहां 5 5 3, अगर एक ही इंड से पढ़ें, सपोज 3 से 5 पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे आप? टी टी जी जी सी सी ए। इसमें पढ़िए 3 से 5, नॉट 5 to 3, 3 से 5 पढ़ें, टी टी जी जी सी सी ए, दोनों का सेम है। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, नाउ सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या बताया मैं? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, जिसको कि दोनों तरफ से एक ऐसा पढ़ा जाए। A sequence of 4 to 8 bases that read same on the 2 strands when orientation of reading is kept the same। जैसा कि अगर एक लिखा हूं मैं 5' to 3' GAATTC, इधर से लिखें 3' से CTTAAG, दोनों को एक ही सीक्वेंस में अगर देखा जाए, एक ओरिएंटेशन से मीन्स एक इंड से, अगर 5 से पढ़ते हैं तो GAATTC, इसको 5 से पढ़ते हैं GAATTC। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ओके, अब देखिए यह जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है।
दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम इसी को पहचानेगा, अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होगा। इट मीन्स ईच एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यह जो है किसका है, आगे हम इसका नाम देखेंगे, इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी का यह रिकॉग्निशन साइट है। ओके, एंड it cuts the DNA a little away from the center or at the center. Little away from the okay, from the center, away from the center or at the center. या तो बिल्कुल सेंटर से काटेगा या सेंटर से अलग काटेगा, लेकिन एक डिफिनिट बेस के बीच से ही काटेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां के कंडीशन में देखें, एक स्ट्रैंड को यहां से काटता है, दूसरे स्ट्रैंड को यहां से काटता है, लेकिन ये फिक्स्ड है बिटवीन द सेम बेसिस ए एंड जी, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अवे दोनों को काट रहा है, सेंटर से नहीं काट रहा है। इट मीन्स अगर हम मोड ऑफ कटिंग की बात करें, मोड ऑफ कटिंग, तो इसका दो मोड है। एक मोड है ऑब्लिक कट और दूसरा है स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट, एक ऑब्लिक कट और दूसरा स्ट्रेट कट। यहां क्या करेगा, ऑब्लिक कट का मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, यहां एट द सेंटर, कट एट द सेंटर। एक में सेंटर से काटेगा, एक सेंटर से थोड़ा दूर से काटेगा। अगर अवे फ्रॉम सेंटर की बात आती है, तब जो दो एंड्स बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्म्स अ स्टिकी एंड, एंड इन दिस कंडीशन forms blunt end. It means by the action of restriction endonuclease enzyme, two types of ends are formed after cutting. One is called a sticky end, other is called blunt end. Okay, अब स्टिकी कैसे बनता है, ब्लंट कैसे बनता है, देखें यहाँ दो एग्जांपल लिया गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। फर्स्ट इज इको R1 and second example is SMA first. They are the two examples of two different restriction endonuclease enzymes. Okay, and this is palindromic sequence, a specific base sequence recognition site for this enzyme. SMA का recognition site यह है, इको R1 का recognition site ये, ठीक है। कट का मैं दो बात किया हूं, ऑब्लिक कट और स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट और स्ट्रेट कट, ऑब्लिक कट मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर, स्ट्रेट कट मीन्स एट द सेंटर। स्मैक कट, स्मैक फर्स्ट कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट सेंटर, दिस बिटवीन सी एंड जी, बिटवीन सी एंड जी। ओके, एंड इको R1 कट्स द डीएनए अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन जी एंड ए, दिस लाइक, सॉरी CTTASG, नॉट C, G यहां काटेगा। अब देखिए, तो अगर इससे दोनों एंड को हम अलग कर दें, डीएनए स्ट्रैंड को अलग करें, रिजल्ट क्या होगा, देखिए G5', यहां से आया G, इधर क्या हो गया, ATTC 3', नेक्स्ट 3', CTTAAG। देखिए, तो यह जो इंड बना एक दूसरे को ओवरलैप फॉर्म बना,
मीन्स स्टिकी है, दूसरे से आसानी से जुड़ेगा ही इस कंडीशन में। लेकिन अगर यहां की बात करें तो दो एंड अलग अलग हो गया, दिस लाइक वन साइड सी सी सी, जी जी जी, जी जी जी, सी सी सी, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। अब अगर इंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 और 3, 3 से 5, 3 to 5, 5 to 3। अब देखिए ये जो इंड बना, दिस इंड, दिस इज कॉल्ड ब्लंट इंड, दिस इज कॉल्ड ब्लंट इंड। एंड इन दिस कंडीशन दिस इंड एक का ओवरलैपिंग फॉर्म में है, दिस लाइक, दिस इज कॉल्ड स्टिकी इंड। तो इसका दो तरह का कटिंग मेथड होगा। नाउ सी restriction endonuclease enzyme, first enzyme restriction endonuclease discovered by Smith, and the name of restriction endonuclease enzyme was Hind second enzyme। याद रखना है, सबसे पहला restriction endonuclease enzyme Hind second by Smith from Haemophilus influenzae बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से निकाला गया? Haemophilus influenzae। Later on, Smith, Arbour and Nathans discovered EcoR1 enzyme from E. coli। E. coli से निकाले, ठीक है। तो पहला हिंड सेकेंड, इसके बाद EcoR1, और अब तक लगभग 900 restriction endonuclease enzymes were discovered by different strains of bacteria and number of strain of bacteria is 230। 230 स्ट्रेन वेराइटी, बैक्टीरिया के वेराइटी से लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोर देन 900 different types of restriction enzymes have been discovered from 230 strain of bacteria। As for example, EcoR1 recognition site GAATTC from source E. coli, Hind third AAGCTT from Haemophilus influenzae bacteria, and restriction endonuclease enzyme only present in prokaryotic cell or in bacteria, not present in eukaryotic cell, okay। And in prokaryotic cell, in bacteria it acts as defense mechanism। बैक्टीरिया में इसका रोल क्या है, क्यों मिलता है? तो इट एक्ट्स एज डिफेंस मैकेनिज्म, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम वायरल जीनोम। क्या करता है यह? वायरल जीनोम से बैक्टीरियल सेल को बचाता है। इट मीन्स इफ एनी वायरस enters in bacterial cell, then restriction endonuclease enzyme cuts the, fragments the, breaks the DNA of viral and destroy them। उस वायरस के डीएनए को काट देता है और काट करके उसको समाप्त कर देता है और उसके अटैक से, उसके इफेक्ट से बच जाता है, ओके। लेकिन बात आती है कि जब यह एंजाइम वायरस के डीएनए को काट रहा है, अगर उसका यूज हम आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं तो यह फॉरेन डीएनए को भी काट रहा है, ओके। तो फिर यह अपने बैक्टीरियल सेल के डीएनए क्यों नहीं काटता है? तो फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सम मॉडिफिकेशंस आल्सो अकर्स इन बैक्टीरियल जीनोम और इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड दैट इज कॉल्ड मिथिलेशन। In bacterial chromosome, methylation process occurs. Addition of methyl group occurs with the help of methylase enzyme, and due to methylation process, bacterial chromosome protect itself from by the action of restriction endonuclease enzyme. Okay. Restriction endonuclease enzyme, it is found only in bacterial cell एज डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन के रूप में। इन बैक्टीरिया इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ वायरस डीएनए। वायरल डीएनए को ब्रेक करता है विदाउट इफेक्टिंग द बैक्टीरियल जीनोम,
बैक्टीरियल डीएनए को इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? बिकॉज बैक्टीरिया चेंजेस द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट ऑफ डीएनए, देन कट द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है ना, पहले उसको पहचानता है तब काटता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस साइट को चेंज कर देता है। इट डज नॉट कट द ओन डीएनए बिकॉज बैक्टीरिया मॉडिफाइड the restriction site of its own DNA by methylation. It means addition of methyl group with the help of methylase enzymes. और इसके कारण बैक्टीरियल सेल में इस एंजाइम का एक्शन नहीं होता। ओके, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 टाइप्स, दैट इज कॉल्ड टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, Type 1 is not a specific, while 2 and 3 are specific. 1 is not a specific, 2 and 3 are a specific. And for the fragmentation of DNA molecule, ATP and magnesium ions are required for type 1. For type 2, only magnesium ion is required, and for type 3, magnesium ion and ATP both are required. Okay. Type 1 cuts the DNA only one strand. It means type 1 cuts only one strand of DNA, while second and third cuts both strand of DNA. Okay. Type 1 is not a specific. It means only one restriction enzyme is responsible for the cutting of DNA and methylation process also. एक ही एंजाइम दोनों काम करता है, काटने का भी काम करता है और जोड़ने का भी काम करता है मिथाइल को। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड में दोनों के लिए अलग अलग होता है, कटिंग के लिए अलग, मिथिलेशन के लिए अलग। देख लेते हैं। नाउ सी 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 नॉट अ स्पेसिफिक, जनरली फाउंड इन mostly bacteria, and it is a specific, it also a specific. Okay, cut only one strand of DNA. DNA strand में से अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो किसी एक को कट करेगा। दिस इज फर्स्ट टाइप। कट बोथ द स्ट्रैंड्स, ऑल्सो कट्स बोथ स्ट्रैंड्स। ठीक है ना। रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन एक्टिविटी मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी, ओनली मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी। Bifunctional means only one enzyme is responsible for the cutting of DNA and methylation process both. Okay, bifunctional enzyme have cutting and methylation activity. Unifunctional separate forms, काटने के लिए अलग एंजाइम, मिथिलेशन के लिए अलग एंजाइम। Separate forms for both functions. Also bifunctional, having activity and methylation activity. Okay, so these are different types of restriction endonuclease enzyme. अब हम लोग को देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सच एज मैं बताया इको R1, हिंड सेकेंड, सेल फर्स्ट, बैम फर्स्ट। तो यह जो नोमेनक्लेचर किया गया, नाम दिया गया, इसका क्या टेक्निक है? जनरली नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 letters plus Roman numbers, such as echo R1, letter plus Roman, hind second और हिंड थर्ड, लेटर 4 लेटर रोमन। ओके, आखिर कैसे दिया गया है इसको देखिए। नाउ सी मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। Naming of restriction endonuclease enzyme consist of 3 or 4 letters and Roman numbers. Name of restriction enzyme consists of 3 or 4 letters plus Roman numbers. Okay. फर्स्ट लेटर क्या होगा, सेकंड थर्ड लेटर क्या शो कर रहा है, फोर्थ लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, रोमन नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरियल जीनस फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड।
ओके, जहां से जिस जीनस स्पेसीज, जिस स्पेसीज से निकाला गया उसके जीनस का फर्स्ट लेटर यूज करेंगे हम उसके नेम का पहला लेटर बनाने में। सेकेंड एंड थर्ड लेटर इज ऑफ फ्रॉम देयर स्पेसीज, सेकेंड और थर्ड लेटर फ्रॉम देयर स्पेसीज, उसके स्पेसीज से दूसरा और तीसरा लेटर। अब दूसरा और तीसरा लेटर में सॉरी पहला और दूसरा लेटर, सपोज नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज नेम का पहला और दूसरा लेटर को एंजाइम के सेकेंड और थर्ड लेटर में यूज करते हैं। क्लियर? स्पेसीज के दो लेटर, फर्स्ट दो लेटर का यूज किए तो पहला तो इसमें नेम में आ गया जीनस, और इसके बाद उसको रखेंगे तो पोजीशन क्या होगा, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर। फोर्थ लेटर फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नॉट इसेंशियल, जनरली यहां दोनों यूज है। एंड फोर्थ रोमन नंबर, ऑर्डर इन विच एंजाइम वेयर आइसोलेटेड, ऑर्डर सीक्वेंस को शो करता है। जैसे अगर क्लास में एक ही नाम का दो स्टूडेंट आ गया तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो आया सेकंड, उसके बाद आया थर्ड, तो सीक्वेंस ऑर्डर को शो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो फॉर ऑर्डर, दैट इंडिकेट्स ऑर्डर सीक्वेंस। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल इको R1 नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम comes from Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia जीनस नेम। तो जीनस नेम का क्या निकाल लिया हमने, फर्स्ट लेटर ई निकाल लिया। ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस नेम, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ स्पेसीज नेम, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर मीन्स को, यहां से क्या आ गया को। ओके, फोर्थ लेटर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, RB13 इज ए वेराइटी, RB30 इज वेराइटी, तो इससे आ गया R। ओके, नाम क्या हो गया, इको R। ई मीन्स जीनस, को स्पेसीज, R मीन्स स्ट्रेन, फर्स्ट ऑर्डर। इशर्सिया कोलाई से सबसे पहला निकालने वाला एंजाइम, सबसे पहले निकाला गया था, सो इट इज कॉल्ड इको R1। क्लियर? दिस इज द मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स में। टूल्स में एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम क्या था, फर्स्ट एंजाइम लाइजिंग एंजाइम, सेकेंड क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट थर्ड एंजाइम लाइगेस, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम, ETC। ओके, फर्स्ट लाइजिंग एंजाइम, सेकंड क्लीविंग एंजाइम। लाइजिंग breaks the outermost covering of the cell, cleaving enzyme breaks the DNA into a small pieces or fragments. Joining enzyme or ligazing enzyme just opposite function to restriction endonuclease, वह काटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। Join the fragments, example ligase enzyme, example is ligase। Okay, alkaline phosphatase enzyme cut off phosphate group from 5' end and prevents, suppose that DNA जो है क्रोमोसोम बैक्टीरिया का जो है वह सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म में तो कहीं ना कहीं 5' और 3' मिला है, तो जिस एंड पर मिलता है तो 5' से क्या करता है, वो फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप दीज DNA नॉट कंबाइंड टूगेदर, फिर से जुड़ करके सर्कुलर फॉर्म में नहीं आता है, सो प्रिवेंट्स इट रीसर्कुलराइजेशन, फिर से वह गोल न हो जाए उसको रोकने का काम कर रहा है अल्कलाइन फास्फेटेज। ओके, एंड सम अदर एंजाइम सच एज RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पढ़ चुके हैं आप लोग सभी का नाम, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, सॉरी रिप्लिकेशन में। एंड टैक पॉलीमरेज यूज इन PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें कि DNA को मल्टीप्लाई करना हो, एक कॉपी से बहुत सारा कॉपी बनाना हो, उस मेथड का नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड
टैक मीन्स थर्मस एक्वेटिकस, जिस स्पीसीज से निकाला गया वो नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो हम लोग आगे देखेंगे पीसीआर में. सो दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स. तो आज हम लोग देखे फर्स्ट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज एंजाइम्स. सेकेंड टूल इज वेक्टर डीएनए, vehicle DNA, third passenger DNA, fourth host cell in next video. Okay, thanks.